Hello, good evening everyone. Today we're starting the topic that is called production operation management. अगले 30 मिनट में we'll try to cover all the important topic which is very important for upcoming examination for UGC NET in some other competitive examination. In the meanwhile, all those students who are doing MBA or PGDM, for those students also it's one of the important subject and one of the important topic which we are going to be discussing in the next 40 minutes. So what is all about the production and operation management? Production management is a process of planning, organizing, directing, and controlling the activities of production function. It combines and transforms various resources used in the production subsystem of the organization into value product in a controlled manner as per the policies of the organizations. आज के टाइम में हम लोग बात करेंगे कि हाउ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट हैज डिफर from the operations management ki why we are requiring the operations management as production management as are running in the market in the last 100 or 200 years. The production management is more concerned about the productivity of the particular product and services. It's a process of planning of the overall production, organizing all the material, all the inputs, डायरेक्टिंग कैसे करना है, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन. इट कंबाइन द ट्रांसफॉर्म द वेरियस रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज को कंबाइन करके हम लोग प्रोडक्शन सब सिस्टम में डालकर वी आर लुकिंग फॉर द सर्टेन वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट और मैक्सिमम आउटपुट की हम लोग बात करते हैं. अगर डिफिनेशन की बात करेंगे, इट डील विद द डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस सो दैट resulting the goods or services are produced according to the specifications, whatever the standard you have been set. So अगर ठीक तरीके से डिसीजन मेकिंग करेंगे, ठीक तरीके से यू आर clubbing, you are organizing all the material, so automatically your production, your final products will be as per the standard or as per the specifications which you have been set. Now, what are the basic objective of production management? Right quality. आज के टाइम में हमको पता है we are more concerned about the quality. The quality of the product is established based upon the customer need. The right quality is not necessary being the best quality. It is determined by the cost of the product and the technical characteristics is suited to the specific requirement. राइट क्वालिटी का मतलब नहीं है कि बहुत बढ़िया क्वालिटी दे रहे हैं. क्वालिटी का कहीं ना कहीं समाव इतने सारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को है. We can't expect the very higher quality. We are paying the very low amount. तो कहीं ना कहीं right quality is all about whatever the amount, whatever the money you are spending. On the basis of those money, on the basis of those spending, we are expecting certain qualities from the manufacturing side. So right quality, जितना पैसा डालोगे, लोग कहते हैं जितनी चीनी डालोगे उतनी चाय मीठी होगी. तो right quality is all about, I'm not talking about the best quality, I'm just talking about the right quality. It should be depending on the whatever the inputs you are putting out. According to the input, it should be the right quality. Right quantity, क्वांटिटी पर्याप्त होना चाहिए. राइट टाइम, आज के टाइम में कई बार आप बोलते हैं कि हाउ द मार्केटिंग हैज बीन चेंज सो फॉर इन द लास्ट 50 ईयर, बिकॉज in a right since last 10 year, last 15 year, whole supply chain management, whole marketers are roaming around the supply chain management. All those people who are very good in a delivery time, all those people who are very punctual about the production facilities, कहीं ना कहीं कितना भी हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर आप बनाते हैं, अगर इफ यू आर नॉट एबल टू रीच आउट दोस प्रोडक्ट इन अ मार्केट इन राइट टाइम, तो इट माइट फेस द प्रोडक्ट फेल्यूर. तो कहीं ना कहीं आपको राइट समय पे सही समय प्रोडक्ट अगर नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं मानी जाएगी एट द राइट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. In the same time, whenever you are talking about the quality, quantity, the time, you have to be more concerned about the manufacturing cost also. क्योंकि अगर manufacturing cost बहुत ज्यादा हो गई तो overall output और overall cost production की बढ़ जाएगी. तो कहीं ना कहीं sometimes you are not able to compete with your existing competitors or existing market. So you just need to be concerned about these 4 basic objectives of production management. Now, what is operation management? The business function responsible for planning, coordinating, and controlling the resources needed to produce the products and services for a company. जब services की बात करते हैं वहीं पे कहीं ना कहीं there is the involvement of operations management. Operation management is the business function that is responsible for managing and coordinating the resources needed to produce a company product and services. The role of OM is to transform organizational input into the company product or services output. So operation management is the extended version of or extended what we call terminology of production management. कहीं ना कहीं whenever we are talking about the services, because पता है जैसे कि नहीं पता 40-50 साल में भी we are more concerned about services. We just product
कि क्वालिटी से somehow people can compromise with what are the services you are providing along with the product, that is more important rather than the product quality. तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन मैनेजमेंट का रोल पिछले 20 साल 25 साल में बहुत बढ़ गया है. The role of OM is to transform the organizational input into the company value, company product or services output. OM is responsible for a wide range of decisions ranging from strategic to tactical. Now, what are the operations मैनेजमेंट का स्कोप क्या है? लोकेशन ऑफ द फैसिलिटीज, प्लांट लोकेशन की बात करेंगे, प्रोडक्ट आपको दुकान खोलनी कहां पर है, इंडस्ट्री ओपन कहां पर करनी, आगे बात करेंगे. प्लांट लेआउट विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस प्रीमाइजेस में मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहां होगा, एचआर कहां होगा, फाइनेंस कहां होगा, ऑपरेशंस कहां होगा. प्रोडक्ट की डिजाइन क्या होगी, प्रोसेस डिजाइन क्या होगा, पीपीसी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, भाई प्लानिंग शेड्यूलिंग रूटिंग एंड डिस्पैचिंग की बात कर रहे हैं हम लोग. क्वालिटी कंट्रोल में सिक्स सिग्मा की बात कर सकते हैं, कंट्रोल चार्ट, क्यू चार्ट, एक्स चार्ट, आर चार्ट, पी चार्ट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात भी इधर ही करते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट और मेंटेनेंस मैनेजमेंट. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन सिस्टम. Production system is that part of an organization which produce the product of an organization. It is activities whereby resources flowing within a defined system are combined and transformed in a controlled manner to add value in accordance with the policies communicated by the management. किस तरीके से प्रोडक्शन सिस्टम काम करता है, सिस्टमेटिक एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, उसी के तरीके से प्रोडक्शन सिस्टम काम करेगा. For the different production, for the different product and services, we have to be follow the different production system. वो वन साइज फिटेड ऑल वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा. सारा प्रोडक्शन सिस्टम सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए पॉसिबल नहीं है. बेसिक है प्रोडक्शन सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द इनपुट. व्हाट आर द इनपुट यू आर पुटिंग, मैन, मटेरियल, मशीन, फॉर्मेशंस और कैपिटल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मनी की बात भी करेंगे, क्या लगा रहे हैं आप. देन आउटपुट क्या होगा, आउटपुट विल बी द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में प्रोडक्ट डिजाइन की बात करेंगे, प्रोसेस प्लानिंग की बात करेंगे, प्रोडक्शन कंट्रोल एंड मेंटेनेंस. कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स हमने आपको सारा पढ़ा दिया है कि इन्वेंट्री को कंट्रोल कैसे करेंगे, इन्वेंट्री कौन सी इन्वेंट्री फॉलो करना है, एबीसी एनालिसिस, क्लासिफिकेशंस आपको इन्वेंट्री का बताया गया था, एबीसी एनालिसिस, एफएसएन की बात किया गया, वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल की बात किया, एसओएस की बात किया, एसडी की बात किया, एचएमएल की बात किया. वी हैव बीन डिस्कस मोर देन द 10 इन्वेंट्री कंट्रोल classifications of inventory controls. So quality control and cost control. So what are the inputs you are putting with the production system and you are looking for the output. Product counts, output आपका product होगा या services होगा, but output के लिए आपको you have to be go for the transformation of the process. Then you have to be concerned about the product की design कैसी होगी, process planning कैसे करेंगे, production control कैसे करेंगे, maintenance कैसे करेंगे. In the same time you have to be concerned about inventory control, cost control and quality control. Then we have a classification of the production system. इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि चारों के कुछ सर्टेन क्राइटेरिया हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सारा एडवांटेज सारा डिसएडवांटेज और फीचर्स हमने लिखे हुए हैं. कंट्रीज प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन और जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन. अब देखिए अगर इस चार्ट से आपको समझ में आ रहा होगा, इधर जॉब शॉप में प्रोडक्ट वेराइटीज ज्यादा होगी और आपका क्लियर, और इधर आपका प्रोडक्शन का वॉल्यूम हमारा कम होगा. अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 कर देते हैं, या आपको 1 2 3 4 5 करेंगे तो इस सबको समझ में आ जाएगा कि जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन में वैरायटीज बहुत ज्यादा होंगी, कई सारे टाइप के प्रोडक्ट बना रहे होंगे, बट वॉल्यूम आपकी कम होगी. बैच प्रोडक्शन में कॉम्पिटिटिवली ज्यादा होगा प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटिवली ज्यादा होगा वॉल्यूम, और प्रोडक्ट वैरायटी कॉम्पिटिटिवली कम होगी. मास प्रोडक्शन में वैरायटीज बहुत ज्यादा होंगी आपकी, प्रोडक्शन भी आपका ज्यादा होगा. कंटिन्यूस में क्या होगा, वैरायटी बहुत कम होगी आपकी, बहुत कम वैरायटीज होंगी, बट आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा. देखिए सारों को एक एक करके डिफाइन करते हैं. जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय, इसको हम लोग प्रोडक्ट प्रोसेस मैट्रिक भी कहते हैं. प्रोडक्ट प्रोसेस मैट्रिक का आगे भी एक हमने डायग्राम बनाया है. Jobs of production are characterized by the manufacturing one or fewer quantity of product designed or produced as per the specification of the customer within the prefixed time and cost. The distinguishing feature of this low volume and high variety of the product, ये याद रखिएगा. आपका वॉल्यूम जॉब शॉप में लो होता है, वैरायटी आपकी ज्यादा होती है. क्लियर, हाई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, लो वॉल्यूम, यूज ऑफ जनरल पर्पस मशीन्स एंड मटेरियल्स, highly skilled operators who can take up each job as a challenging because of the uniqueness. आपको जो ऑपरेटर्स होंगे मशीन चलाने वाले वो हाईली स्किल्स होंगे, बिकॉज हर बार एक नई जॉब होगी. लार्ज इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, टूल एंड पार्ट. एडवांटेज क्या हो गया, एडवांटेज का हो गया बिकॉज ऑफ जनरल पर्पस मशीन्स फैसिलिटीज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस.
ऑपरेटर्स विल बिकम मोर स्किल्ड, जितना ज्यादा नया नया काम करेंगे उनको स्किल्स बढ़ेगी, कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी। फुल पोटेंशियल्स ऑफ ऑपरेटर्स कैन बी यूटिलाइज, अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट फॉर क्रिएटिव मेथड्स एंड इनोवेटिव आइडिया। लिमिटेशंस क्या होगी? कॉस्ट, बहुत हायर कॉस्ट ड्यू टू द फ्रीक्वेंट सेटअप चेंज, हर बार आपको सेटअप चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वैरायटीज बहुत ज्यादा नहीं है, तो कॉस्टिंग इन्वॉल्व होगी, इन्वेंट्री बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगी, प्रोडक्शन प्लानिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, और इस लार्ज स्पेस, बहुत सारा स्पेस रिक्वायरमेंट होगा क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मशीन की जरूरत पड़ेगी आपको। सेकेंड हो गया बैच प्रोडक्शन। American Production and Inventory Control Society defines batch production as a form of manufacturing in which the job passes through the functional department in lots or batches। होता है ना एक बैच साइज, लॉट साइज बना होता है प्रोडक्ट के पीछे, आप देखेंगे ना। तो इसका बैच प्रोडक्शन का ये फायदा होता है कि सपोज दैट इफ देयर इज एनी एरर और देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन द प्रोडक्ट, तो कंपनी को सारे प्रोडक्ट मार्केट से नहीं बुलाने पड़ते हैं, वो उसको एक रिकॉग्नाइज करके समझ में आ जाता है कि कौन से बैच में इसका प्रोडक्शन हुआ था। कंपनी कॉल्ड अप दोस प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट टू द देयर फैक्ट्री। तो बैच प्रोडक्शन में कैरेक्टराइज प्रोडक्शन रन शॉर्ट होता है, शॉर्ट साइकिल होती है। प्लांट एंड मशीनरी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। प्लांट एंड मशीनरी सेटअप इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स इन अ बैचेस। चेंज ऑफ सेटअप इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग द नेक्स्ट बैच। मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम एंड द कॉस्ट आर लोअर एज कंपेयर टू द जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम भी कम होता है, कॉस्टिंग भी कम होता है। एडवांटेज, बेटर यूटिलाइजेशन होता है मशीनरी प्लांट का, प्रमोट द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, कॉस्ट पर यूनिट इज कम होती है, लोअर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, flexible to accommodate and process number of product, and job satisfaction exist for the operators। थर्ड हो गया मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मतलब बहुत बल्क में कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ डिस्क्रीट पार्ट्स और असेंबलिंग यूजिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस और कॉल्ड मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस सीक्वेंस सिंपल, प्रोडक्ट बहुत स्टैंडर्डाइज होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं। डेडिकेटेड स्पेशल पर्पस मशीन्स हैविंग हायर प्रोडक्शन कैपेसिटीज, आउटपुट रेट, लार्ज वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगी, शॉर्ट साइकिल होगी, इन्वेंट्री प्रोसेस टाइम लोअर इन प्रोसेस इन्वेंट्री को लगातार कहीं ना कहीं प्रोडक्शन चल रहा है, आपका मास प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इन प्रोसेस इन्वेंट्री बहुत कम होगी। परफेक्टली बैलेंस द प्रोडक्ट लाइन, फ्लो ऑफ मटेरियल कंपोनेंट एंड पार्ट्स इन कंटिन्यूअस विदाउट एनी बैक ट्रैकिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज इजी, मटेरियल हैंडलिंग कैन बी कंप्लीटली ऑटोमेटिक। एडवांटेज, हायर रेट ऑफ प्रोडक्शन विल रिड्यूस द साइकिल टाइम, प्रोडक्शन का साइकिल रेट ज्यादा है तो साइकिल टाइम कम हो जाएगा। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ड्यू टू द लाइन बैलेंसिंग, लेस स्किल्स ऑपरेटर्स, कोई भी मशीन को चला सकता है, लो प्रोसेस इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज लो। लास्ट हो गया, यही प्रोडक्ट प्रोसेस मेट्रिक है, इसमें आप देख लीजिए, इसको एक बार समझ लीजिएगा। जॉब शॉप में वॉल्यूम लो होगी आपका, बट आपका वैराइटीज ज्यादा होंगी, ये बैच में हो गया। यहाँ पे यूनिक होगा, यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे आपके बैच में, असेंबली लाइन में हायर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होंगे और वेरी हाई वॉल्यूम कंटिन्यूअस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट। प्लांट लोकेशन मतलब है दुकान हो, ऑफिस हो, रेस्टोरेंट हो, फैक्ट्री, आपको कहां पर ओपन करना है। सो व्हेनेवर वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट एनी प्रोडक्शन, एनी प्लांट, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द एन नंबर ऑफ द फैक्टर्स। कई सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। कोई भी दुकान कहीं पर भी ओपन नहीं कर सकते, कोई भी फैक्ट्री कहीं पर भी ओपन नहीं कर सकता। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द एन नंबर ऑफ द फैक्टर्स व्हाइल स्टार्टिंग एनी प्लांट लोकेशन और फैसिलिटी लोकेशन। तो प्लांट लोकेशन, द फैसिलिटी लोकेशन प्रॉब्लम, an important strategic labeled decision making for an organization, one of the key features of conversion process। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट लोकेशंस को इंपैक्ट करते हैं? जनरल लोकेशन फैक्टर्स और स्पेसिफिक लोकेशन फैक्टर। जनरल में हो गई प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट, इसमें कंट्रोल हो गया, अनकंट्रोलेबल हो गया। कंट्रोल जो कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट, मार्केट कितना दूर है आपका। आप शुगर केन की फैक्ट्री कहीं बेंगलुरु में नहीं खोलेंगे आप, मार्केट शुड बी देयर। ठीक है, सप्लायर ऑफ द मटेरियल्स, आपको आप मेट्रो सिटीज में शुगर केन की फैक्ट्रीज खोल रहे हैं तो रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। इन द सेम टाइम अगर रूरल एरियाज में अगर आप कोई आईटी फैक्ट्रीज खोल रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं मैन पावर नहीं मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कैसी है, इंफ्रा कैसा है वहां पर, रोड का है, बाई एयर है, बाई। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हाउस खोल रहे हैं, व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू ओपन एनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हाउस, यू विल ऑलवेज टारगेट टू द योर प्लांट नियर टू द सी। समुद्र के पड़ोस में होगा तो इजिली यू कैन एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट फ्रॉम one place to other place। इंफ्रा की अवेलेबिलिटी, बिजली, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक रोड, बेसिक टेलीफोनिक, बेसिक वाईफाई, तो पूरा इंफ्रा अवेलेबिलिटी की बात करेंगे। लेबर एंड वेजेस कितना है, लेबर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक्सटर्नल इकोनॉमीज की बात करेंगे, जो आसपास के लोग हैं। एंड कैपिटल,
Uncontrollable factors, government policies, climate conditions, supporting industry and services, communities and labor attitudes, community infra. Government policies, आपको पता है कि despite of having the population of 35 crore in these two states, UP and BR, we have very less industries just because the government policies, even in Bengal also. क्लाइमेट कंडीशन, अगर क्लाइमेट बहुत स्टेबल नहीं है, अगर आप लद्दाख में जाके या आप चेरापूंजी में व्यापार नहीं करोगे, क्लाइमेट बहुत अनस्टेबल रहता है. सपोर्टिंग इंडस्ट्री एंड सर्विसेज की बात करेंगे, whatever the product you are starting, whatever the product you are producing, you have to be careful about the supporting industries also. कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सपोज दैट आपको रबड़ भी चाहिए होगी, प्लास्टिक भी चाहिए होगा, बैटरी भी होगा, ग्लास भी होगा, तो इन द सेम टाइम यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, वेदर देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज और नॉट. कम्युनिटी इन द लेबर एटीट्यूड, लेबर का, जैसे यूपी बिहार का, या बहुत सारे लोग यूपी के लोगों से, बिहार के लोगों से यूपी बिहार में काम कराना बड़ा कठिन है, बट ऑल दोस पीपल्स व्हेनेवर दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम दिस टू स्टेट टू द गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, दे आर डूइंग परफेक्टली फाइन. कम्युनिटी इंफ्रा. देन डोमिनेंट फैक्टर, बोथ ऑफ द स्पेसिफिक फैक्टर, देन डोमिनेंट फैक्टर. फेवरेबल लेबर क्लाइमेट, कौन से स्टेट में कौन से नहीं है. प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट की बात करेंगे. क्वालिटी ऑफ द लाइफ, आजकल वाई पीपल, जब भी कोई एमएनसीज कंपनी बाहर से आ रही है तो दे आर टारगेटिंग द गुड़गांव, दे आर टारगेटिंग द बेंगलुरु, दे आर नॉट इवन, अब गुड़गांव भी टारगेट नहीं कर रहा, दे आर टारगेटिंग द पुणे, दे आर टारगेटिंग द बेंगलुरु, दे आर टारगेटिंग द मैसूर, दे आर टारगेटिंग द हैदराबाद. दिस बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ is comparatively good as compared to the northern India. Proximity to the supplier and resources, बात कर चुके हैं. यूटिलिटी टैक्स इन द रियल एस्टेट कॉस्ट. भारत में कुछ स्टेट में, कुछ सिटीज में रियल एस्टेट कॉस्ट बहुत ज्यादा है. आपको लगता है कि प्रोडक्ट आप कहीं पर भी बनाकर कहीं पर भी मार्केट में बेच सकते हो, देन यू डोंट नीड टू स्टार्ट योर ऑपरेशंस इन अ मिड ऑफ द सिटी के, शहर के बीच में कोई दुकान खोलेंगे या प्रोडक्शन फैसिलिटी खोलेंगे तो रियल एस्टेट कॉस्ट ज्यादा होगी. उससे बढ़िया कि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर एक आउटस्कर्ट में कैंपसेस खोल लें, आउटस्कर्ट में आप कोई प्लांट खोल लें तो रियल एस्टेट कॉस्ट कम हो जाएगी. So this was all about the plant location. Next the plant layout. Plant layout is all about the, हम लोग एक विद इन द, एक दुकान तो सेटअप कर दिया आपने, कहां पर करना है, रेस्टोरेंट ओपन हो गया, बट रेस्टोरेंट में सिटिंग कहां पे होगी, किचन कहां पर होगा, रिसेप्शन कहां होगा, बिलिंग काउंटर कहां पर होगा. तो प्लांट layout is the physical arrangement of production facilities. It is the configuration of the department, work center, equipment in the conversion process. It is a floor plan of the physical facilities which are used in a production. So within the organizational premises, you have to be take care about a certain physical arrangement of the production facilities. कहीं पर भी कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होगा. अगर आप कोई पेरिसेबल आइटम है तो आपको डिस्पैच और प्रोडक्शन साथ साथ में रखना पड़ेगा. अदरवाइज इट माइट टेक सम मोर टाइम ऑल्सो. और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पेरिसेबल आइटम्स की बहुत कम होती है, तो इट माइट टेक कि प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचते पहुंचते भी एक्सपायर हो जाए. तो इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. प्लांट लेआउट इज नॉट ए स्टैंडर्डाइज्ड लेआउट व्हिच कैन बी फॉलो फॉर अक्रॉस द ऑल टाइप ऑफ plant locations, but plant layout refers to the physical arrangement of production facilities. It should be customized according to the product to product. Objective क्या होता है? Streamline the flow of the material through the plant. एक सिस्टम से चलता रहे काम. Maintain the high turnover of in process inventory. Effective utilization of man, equipment and space. Flexibility of manufacturing operations and arrangement. मिनिमाइज द इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट. जो इन्वेस्टमेंट करना है इक्विपमेंट में उससे कम होगा कि अगर आप सही से प्लांट लोकेशन करेंगे, प्लांट लेआउट करेंगे. मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट एंड ऑपरेशन. फैसिलिटेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. मिनिमाइज द मटेरियल हैंडलिंग एंड कॉस्ट. मान लीजिए कि मिल्क का पैकेट है, प्रोसेस कहीं पर हो रहा है, उसको आपने अनलोड करके उसको एक क्रेट में रखा, क्रेट में लोड करके आप कहीं उस पर दूसरी जगह जाके उसमें लेबलिंग कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, एक्सपायरी डेट डाल रहे हैं, तो अगेन लोडिंग कॉस्ट, अनलोडिंग कॉस्ट पड़ेगी. तो प्लांट लोकेशन ऐसे करना जहां पर फाइनल प्रोडक्ट मिल्क का पैकेट बन रहा है उसके आसपास ही कहीं ना कहीं मार्किंग का, बिलिंग का काउंटर बनाइए जिससे वो प्राइस और एक्सपायरी डेट डाल सके. मेक द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ क्यूबिकल स्पेस. आजकल देखें ना छोटे छोटे कॉल सेंटर्स में, बीपीओज में, इवन द आवर फैकल्टी रूम आल्सो कैन बी द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द क्यूबिकल स्पेस. प्रोवाइड फॉर द एम्प्लॉयज कन्वीनियंस, सेफ्टी एंड कंफर्ट. मिनिमाइज द ओवरऑल प्रोडक्शन टाइम and facilitate the organizational structure. There are basic principles of plant locations. Principles of integration. Principles of integration means सारे लोगों को जोड़ के रखना है कि ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहीं है, एचआर कहीं है. There is no coordination between the marketing and HR and finance, finance and operation supply. Principle of minimum distance, बहुत दूरी नहीं होना चाहिए. Principle of cubic space utilization बता ही चुके हैं. Principles of flow, एक सिस्टम से काम चलेगा. Principles of maximum flexibility. फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं एक मशीन को आप 2 जगह 4 जगह यूज कर सकते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सेटिस्फैक्शन यू हैव टू बी कंसर्न. प्रिंसिपल्स ऑफ मिनिमम हैंडलिंग.
Now, classification of the layout, there are basic 4-5 types of layout: product layout, process layout, combination layout, fixed position layout, cellular layout और group layout भी बोलते हैं उसको, 5वां layout भी होता है। प्रोसेस लेआउट क्या होता है? प्रोसेस लेआउट इज रिकमेंडेड फॉर द बैच प्रोडक्शन। आपको यही याद रखना है, पेपर में यही, एग्जाम में आपको यही पूछा जाता है कि कौन से प्रोडक्शन सिस्टम के लिए कौन सा लेआउट यूज करते हैं। प्रोसेस लेआउट इज रिकमेंडेड फॉर बैच प्रोडक्शन। ऑल मशीन्स परफॉर्मिंग सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशंस आर ग्रुप्ड एट वन लोकेशन इन द प्रोसेस लेआउट। सारी मशीन्स एक ही जगह पर रखी होती हैं। बड़ी बड़ी मिल्स की बात करेंगे जो कालीन बनती है, कहीं ना कहीं प्रोसेस लेआउट के तहत, प्रोसेस लेआउट के थ्रू बनती है। इन प्रोसेस लेआउट मशीन्स आर बेटर यूटिलाइज एंड फ्यूअर मशीन्स आर रिक्वायर्ड। एक ही मशीन से पूरा प्रोडक्ट बनता है, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट कहीं पर बन रहा है, असेंबल कहीं हो रहा है, मार्किंग कहीं हो रही है, लेबलिंग कहीं हो रही है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड पर्सनल इज पॉसिबल इन प्रोसेस लेआउट। लोअर इन्वेस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ मशीन्स, लोअर कॉस्ट ऑफ जनरल पर्पस मशीन, क्योंकि एक मशीन से पूरा प्रोडक्ट बन जाता है। हायर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज, हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज भी रिकॉर्ड टू द वर्क डिस्ट्रीब्यूशन टू द मशीनरी, क्योंकि एक आपने कोई कालीन बनने को दे दिया, आपने कोई बेडशीट बनने को दे दिया, कुछ भी, तो एक ही इंसान कहीं ना कहीं उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया गया काम वो कहीं फाइनली कंप्लीट करेगा, उसके बाद में आप प्रोडक्टिविटी भी चेक कर सकते हो। डाइवर्सिटी ऑफ टास्क एंड वैरायटी ऑफ जॉब मेक द जॉब चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग। Supervisors will become the more highly knowledgeable about the functions under their department. So all those people who are working under the process layout, उनका जो supervisor होगा, it should be more highly knowledgeable, otherwise वो पूरे टीम को मैनेज नहीं कर पाएगा। प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है? जहां पर वैरायटीज बहुत सारा होती है। इन दिस टाइप ऑफ लेआउट मशीन्स एंड ऑक्सिलरी सर्विस आर लोकेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसिंग सीक्वेंस ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा, आपको कि प्रोडक्ट पहले बन गया, रॉ मटेरियल बन गया, प्रोडक्ट पैकेज हो गया, पैकेज के बाद उसमें जैसे कोका कोला की अगर हम लोग बात करेंगे ना, कि पहले बॉटल्स आई, बॉटल धुल गया गर्म पानी में, ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी में, फिर बॉटल्स चीजें हो गई, जो बॉटल डैमेज थी, बॉटल गिर गई, फिर उसमें कोल्ड ड्रिंक भरी, उसमें उसका कैप लगी, कैप के बाद लेबलिंग हुई। तो इन दिस टाइप ऑफ लेआउट मशीन्स एंड ऑक्सिलरी सर्विस उसी तरीके से हम लोग फिट करते हैं जिस तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। If the volume of the production of one or more product is lower, the facility can be arranged to achieve efficient flow of material and lower cost per unit. Advantage क्या होता है? Flow of product will be smooth and logical in flow. In process inventory बहुत low होती है कि फाइनल प्रोडक्ट एक बार स्टार्ट हुआ, फाइनल बन जाता है। Throughout time is less, minimum material handling cost, पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है। Simplified production planning and control. Less space is occupied by the bulk transit and for temporary storage. Reduce the material handling cost due to the mechanized handling system, पूरा automated system चलता है यहाँ पे। Perfect line balancing which eliminate the bottleneck. Manufacturing cycle is short due to the uninterrupted flow of material. Small amount of work in progress, process inventory. Unskilled worker can learn and manage the production also. Third is the combination. Combination is a combination of product and process. बहुत डिटेल में नहीं जाना। फिक्स पोजीशन लेआउट होता है जहां पर देखिए रेल का इंजन बन रहा है, ये शिप बनता है, पानी वाला जहाज बनता है, ऐसी जगह पे, या बड़े बड़े डैम्स बनते हैं, या बड़े बड़े आप फ्लाईओवर्स देखेंगे जहां पे क्या ना, एवरीबॉडी हैज टू बी मूव आउट इन वन प्लेस, जहां पर जाके ओवरऑल प्रोडक्शन होता है, उसी को बोलते हैं फिक्स पोजीशन लेआउट। दिस इज आल्सो कॉल्ड द प्रोजेक्ट टाइप ऑफ लेआउट। इन दिस टाइप ऑफ लेआउट द मटेरियल और मेजर कंपोनेंट रिमेन इन अ फिक्स्ड लोकेशन एंड टूल्स, मशीनरी, मैन एंड अदर मटेरियल्स आर ब्रॉट टू द लोकेशन। सारे लोग उसी जगह पर आएंगे। देखिए फ्लाईओवर कहीं पर बनना है, ऐसा नहीं कि फ्लाईओवर कहीं पे बना के आपने उसे रख दिया, ऐसा नहीं होता। एवरीबॉडी हैज टू बी कम आउट अ पर्टिकुलर प्लेस, वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। ऐसे रेल का इंजन भी कहीं ना कहीं पटरी पे ही बनता है, उसको ऐसा नहीं कि रोड पे बना, आपने कहीं पर फैक्ट्री में बना के उसको आप मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ऐसी जगह को बोलते हैं फिक्स पोजीशन लेआउट। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स पोजीशन लेआउट। एवरीबॉडी हैज टू बी कम आउट अ पर्टिकुलर प्लेस। पानी के शिप का हमने एग्जांपल दिया है। मटेरियल उधर ही आएगा, लेबर भी होगा, इक्विपमेंट भी होंगे। एडवांटेज, it help in a job enlargement, upgrade the skills of the operators. The workers identified themselves with the product in which they take interest and pride in doing the job. Greater flexibility with this type of layout. Layout capital investment is lower. Next हो गया 5S lean principle. 5S lean principle क्या होता है? इसमें 5 चीज होती है: sort, set, sign, standardize और sustain. लीन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत डिटेल में पढ़ाया था आपको कि लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है आपको। उसके बाद पैरेटो एनालिसिस भी आपको पढ़ाया गया था, अगर याद होगा 80-20 रूल की बात की थी। तो देयर आर 5 S प्रिंसिपल्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। तो सॉर्ट इज टू सेपरेट द नेसेसरी फ्रॉम द अननेसेसरी। जो सही चीजें उसको अलग, गलत चीजें अलग अलग करिए, जो सही प्रोडक्ट है उसको एक साइड रखिए, बेकार प्रोडक्ट को एक साइड रखिए। सेट, डेजिग्नेट ए प्लेस फॉर अननेसेसरी आइटम, कौन सा सामान कहां पर रखा जाएगा। साइन, कीप द वर्क प्लेस क्लीन एंड टिडी टू सरफेस प्रॉब्लम्स, बिल्कुल साफ सुथरा रखिए जिससे चीजों को समझ में आएगा कौन सा प्रोडक्ट कहां पे रखा था।
स्टैंडर्डाइज, मैनेज एंड मेंटेन द परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड कर दीजिए ताकि आप परफॉर्मेंस को मैनेज कर सकें। सस्टेन, since last 20 years 25 years we are more concerned about sustainability to implement the standard for the optimal conditions, जिससे कि चीजें ठीक से रहें। तो 5 S कौन से हो गए लीन प्रिंसिपल्स के? सॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। नेक्स्ट इज द लीन प्रिंसिपल प्रोडक्शंस। लीन प्रोडक्शन इज आपको बहुत डिटेल में बताया था, जहां पर कम इन्वेंट्री से बहुत सारा काम करना होता है। while investing the minimum input we are more concerned about the maximum output। ऐसी जगह पे लीन प्रोडक्शन का काम करते हैं। Just in time inventory, GIT inventory, Toyota was a very first company who have started the GIT concept of inventory control, कि जब भी जरूरत पड़ेगा तभी इन्वेंट्री मंगा रहे हैं आप। तो लीन प्रोडक्शन इज ऑल अबाउट doing more with the less inventory, fewer workers are required, less space are required। एलिमेंट ऑफ लीन प्रोडक्शंस, फ्लेक्सिबल रिसोर्सेस, एक रिसोर्स को कई जगह यूज करते हैं। सेलुलर लेआउट को फॉलो करते हैं। पुल सिस्टम, कैनवस, स्मॉल लॉट्स। कैनवस जो नहीं होता है, आपने देखा होगा उसके प्रोडक्ट के पीछे लाइंस होती हैं, ब्लैक, डार्क ब्लैक, पतली, फिर नैरो, फिर चौड़ी, ऐसे एक वो बना होता है, उसे कैनवस बोलते हैं। फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज, सेलुलर लेआउट, पुल सिस्टम, कैनवस, स्मॉल लॉट्स होता है। क्विक सेटअप होता है, बहुत जल्दी सेटअप को चेंज कर सकते हैं। यूनिफॉर्म प्रोडक्शन लेवल होगा, क्वालिटी एट द सोर्स होगा, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होगा, सप्लायर नेटवर्क होगा। बेनिफिट क्या होगा? इन्वेंट्री रिड्यूस होगी, आप अननेसेसरी इन्वेंट्री नहीं रखोगे। हम आपको एग्जांपल भी देते हैं कि लीन प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्टेड बाय द आवर फैमिली, आवर मदर। कि जब भी मैं गेस्ट आया करते थे, आई डू यूज वेरी कॉमन एग्जांपल, जब भी गेस्ट घर पे आया करते थे तो मम्मी बोलती थी जाओ कुछ बिस्किट ले आओ, कुछ नाश्ता ले आओ। तो कहीं ना कहीं तो आप इन्वेंट्री, अननेसेसरी इन्वेंट्री यू डोंट नीड टू बी कीप। तो रिड्यूस द इन्वेंट्री, इट्स ऑलवेज इंप्रूव द क्वालिटीज, लोअर कॉस्ट आर रिक्वायर्ड, रिड्यूस द स्पेस रिक्वायरमेंट, शॉर्टर लीड टाइम होगा, और इट्स ऑलवेज इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। So this is all about today's lecture. Thank you so much for joining. Goodbye. Take care.